हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। भूमिका कटियार हमारे साथ हैं और आपने एक लंबी जर्नी तय की है और डेफिनेटली इस जर्नी का जो एंड है वो एक सक्सेस के तौर पर है। एंड तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, जो चाहते थे वो एंड के तौर पर दिखाई देता है। डिप्टी कलेक्टर और यूपीएससी से आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंची भूमिका। सो डेफिनेटली इस बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। पहले तो ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। सो विल स्टार्ट विथ एजुकेशनल बैकग्राउंड। कैसा रहा एजुकेशन? और आप छत्तीसगढ़ से ही हैं? जी सर। तो प्लीज बताएं अपने बारे में। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा कि स्कूलिंग रायपुर से ही हुई जी। और माय मदर वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ कि इसको आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाना है, सो दैट शी हैज दिस potential and habit of reading and writing, so she should know how to handle that pressure. तो she was fond of this, तो इसलिए ICSE बोर्ड में स्टडीज की। फिर 11th-12th में while preparing for IIT and IIEEE, तब I shifted to state board। तो then NIT रायपुर में सिलेक्शन हुआ फिर, तो NIT रायपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। ओके। NIT रायपुर से भी प्रिपरेशन का लगता तो था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। थोड़ा हेवे में करते थे, NCERTs पढ़नी है, ये एवरी एस्पायरेंट नोज। तो NCERTs वगैरह पढ़ते थे। And then I visited you in 2012. I still remember. Okay. So I do remember this. So I was तब I started my college. I was thinking of कि I'll continue my preparations and meanwhile with college I'll continue my preparations for civil services. So that gives you channelize your preparation when you find some mentor and some kind of that. So, but then in your college life you're not that it goes on very heavy or in your college life, and then when you are in third year you realize कि नहीं अब थोड़ा focus करना है। तो then I got selected जब college placements में PSUs आती हैं, तो I pursued for HPCL, BPCL, तो इनके interviews दिए, interviews तक पहुंची थी इनके written and then GDN interview। Then still there was something, I'll go for civil services preparation, and because I want to study, I don't want to work right now, I want to work in this exactly. So I didn't go there. कोई सीनियर्स वगैरह भी मिले, लाइक किन्हीं को देखा हो कि अच्छा सर सीनियर थे कॉलेज में जिन्होंने निकाली एग्जाम? There were many seniors, those who were preparing with me, they were guiding me as well. Now they are in different states, at different positions. So it feels very nice when your peer group is at different places. So yeah, that was always inspiring. And then I went to Delhi. Job आपने नहीं किया? नहीं, I didn't take it. It was not private, it was public sector. Taking HPCL, yes. So, but then I wanted to study further, so I went to Delhi for preparation with all vigor and energy. I'll go for UPSC. So staying in Old Rajendra Nagar, I prepared. I was studying there. What was the optional? My optional was political science and international relations. Yes. So while studying that, it involved more interest in humanities. So I appeared for JNU entrance exam. Masters. Yes. So I pursued masters from JNU in political science. That was about my masters while I was preparing and giving exams. How's that journey? I mean, साथ-साथ आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे उस वक्त? जी। Okay, ठीक है। Then COVID hit us. Okay. So I came back to Raipur. Coming back to Raipur, while I was studying in, I used to go to Nalanda library. So there were CGPSC aspirants with me, my friends, my college mates. So I was studying for CGPSC as well. Okay. It took some time to go through the syllabus and mapping the areas, because every exam is different. Yes, every exam is different. Every exam needs different kind of requirements, different orientation of studies. So I was focusing on not suddenly, very slowly my focus shifted to CGPSC. I started like
because it was new. I mapped the areas and domains where I have to, what to do where. Yes. So it was new and I came with all vigor to, I was studying this, and first में pre नहीं निकला था. Then again I worked and I was like कि इसको देखना है, ये करना है. And there was environment in library as well. So साथ में काफी लोगों ने किया, पढ़ा, फिर CGPSC के लिए पढ़ाई करी. क्या चैलेंज लगा? आई मीन यूपीएससी से जब आप शिफ्ट करते हैं सीजीपीएससी में, एक बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी है जो दिल्ली में रह रहे हैं, कई बार उन्हें लगता है हम दिल्ली में बैठे बैठे प्रिपेयर कर लेंगे सीजीपीएससी, बट अक्सर मैं उनको सलाह देता हूं, इफ यू आर देयर फॉर सीजीपीएससी देन कम डाउन टू रायपुर. जी. एंड आई थिंक इन रायपुर देयर इज अ इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड. सो क्या एक पहले मैं डिफरेंस पर बात करना चाहूंगा, यूपीएससी एंड देन सीजीपीएससी, व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस यू फाउंड देयर? Both exams have different kind of, the pattern is different. Exactly. So since the pattern is different, your way of study changes. Your way of notes making changes. Your orientation changes. Like the way you study the Hindu and the way you study our Dainik Bhaskar. It changes. You know which news you have to jot down, which you have to leave. Yeah. So like there in UPSC, there's no sports section. Sometimes we just flip off the sports section. Yeah. Here you cannot. We have paper 7. So yeah, there's some changes. Like answer writing pattern is different. There are 2 marks, 4 marks, different answer sheet, different answer writing pattern. So वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाया? लाइक उस चेंज में अडॉप्ट होने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, लाइक सर विल गो विद 30 वर्ड्स, हमने 30 वर्ड्स का कलेक्शन किया, 60 वर्ड्स का अलग कलेक्शन किया, ऐसे क्या वो स्ट्रैटेजीज रही होंगी आपकी? सर पहले तो पास्ट ईयर पेपर्स से पूरा एक्चुअली एक शीट बनाया था. वो शीट है. हाँ. तो वो शीट पे फॉर एग्जांपल मुगल्स कितने बार है, और मुगल्स के एक पर्टिकुलर एरिया से कितने क्वेश्चन है. मान लीजिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स पे ही आएगा. तो सिंस ये क्वेश्चन मुगल से आता है तो इसी नाम से द किंग या फिर उस हिस्टोरिक प्लेस से रिलेटेड मुगल से भी आ सकता है, कल्चुरी से भी आ सकता है, मराठा से भी आ सकता है. तो वो सारे किंगडम्स के वो वाला चीज प्रिपेयर कर लो. एंड देन सिमिलरली जैसे मुगल्स पढ़ा तो उसका सेक्शनल टेस्ट सारे लगाए, मतलब कि मुगल्स के सवाल गलत नहीं होने चाहिए. मतलब मुगल्स इतना पढ़ लिया है, एक 5-6 A4 साइज पेज का एक नोट्स बन गया है, तो फिर वो एटलीस्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए. वो गलत हो रहा है तो देयर इज समथिंग फॉल्टी इन माय नोट्स मेकिंग, तो वो हमको क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलता है. सो देयर वाज इंटीग्रेटेड way of studying for prelims and mains. Okay. So दोनों साथ में करते हैं. मार्क्स का एक बार कैलकुलेशन समझे. लैंग्वेज यू स्कोर्ड मोर मार्क्स. So फर्स्ट पेपर लैंग्वेज का होता है छत्तीसगढ़ में, एंड सेकंड पेपर एसे राइटिंग का होता है, जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं. सो व्हाट वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी सिंस हिंदी इज 100 मार्क्स एंड इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी ये 50-50 नंबर के आते हैं, ओवरऑल 200 मार्क्स. सो क्या स्पेशल रहा उसमें? सर स्पेशल ये है लैंग्वेज का कि वो स्कैरी भी है एट द सेम टाइम, कंफर्टेबल भी, बिकॉज लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको रोज पढ़ना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सो दैट यू कैन नॉट मग अप ऑल द पर्यायवाची एंड इडियम्स वंस एट अ टाइम. तो दिस वाज वेरी जब ब्रेक्स लेते हैं कि तो चलो अपना छत्तीसगढ़ सारांश निकाल लिए, विनय कुमार पठाक निकाल के एक टेबल पढ़ लिए कि पर्यायवाची, तो घूमते फिरते वो पर्यायवाची आपके दिमाग में चलते रहते हैं दिन भर. तो लैंग्वेज वाज वैसा, मतलब रोज थोड़ा बहुत पढ़ना था. स्कोर क्या रहा आपका? सर मेरा 140 जी. ओके. सो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 140 का स्कोर कम नहीं होता है, और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 160 170 तक भी आई थिंक जा सकते हैं. एग्जैक्टली. मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि इंग्लिश में मुझे गलत ही नहीं करना है, मतलब 50 मार्क्स है तो आई हैव टू टारगेट 50. इंग्लिश मुझे गलत नहीं करना है, हिंदी मुझे गलत नहीं करना है. छत्तीसगढ़ी के जो ट्रांसलेशंस हैं वहां कुछ कभी कभी गड़बड़ी होती थी, तो सिंस उसके कारण मुझे यहाँ पे कवर करना है कि हिंदी इंग्लिश में स्कोप नहीं है, इंग्लिश में मेरे पास स्कोप नहीं है कि मैं गड़बड़ करूं. तो बस वही स्ट्रैटेजी थी. लैंग्वेज जितना स्केरी है तो वो एक था डर कि इस
Scare को हटाना है, let's do this language Yes. with all आपने direct काम किया, करना है। that is very important, जी, direct काम जी। किया। दोस्तों सिंपल फंडा है, जिस चीज से डर लगे उस पर सबसे ज्यादा काम कर लें, वो अपने आप डर खत्म हो जाएगा। I think Exactly, exactly. Yeah. And what was the strategy for essay writing? आपका स्कोर भी बता दें एंड क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? 149 रहा उसमें मेरा आई स्कोर। थिंक वो, मुझे लगता है इससे ऊपर स्कोर आया नहीं होगा किसी का। मैंने अभी चेक नहीं किया मार्क्स, जी। लेकिन इट्स अ गुड मार्क्स बिकॉज इतने सालों में मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो लोगों के आए हैं 146, 145, 149 इज टू गुड। 200 में से स्टिल मैं कहता हूँ कि एसे राइटिंग बहुत एज दिला सकता है जो आपने ले लिया, ज्यादा। ठीक है ना? जी, सर। सो 4 एसेज में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर ऐसे राइटिंग में पूरा अपने हाथ में होता है, इट गिव्स यू लिटरली द एज Edge, दैट यू कैन yeah. क्रिएट। तो ऐसे राइटिंग इज वेरी पर्सनल, मतलब जो टॉपिक है उसमें आपको पता है कि देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ द एसे, देन बॉडी ऑफ द एसे, देन कंक्लूजन, एज द कोचिंग्स एंड you teach us. So now body is on you. What do you like? They can be merits, demerits, pros, cons, causes. The data. So data I used to write. There was a diary. तो जब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स में आता था, जी। तो मुझे लगता था कि ये डेटा काम आ सकता है। बहुत फॉर बढ़िया। एग्जाम्पल नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, इस रिपोर्ट के हिसाब से लाइक वुमेन रिलेटेड डेटा और Got it. सम पर्टिकुलर ग्रुप रिलेटेड डेटा। तो जब वो पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये तो यूज करना करना है, है। दिस इज समथिंग व्हिच कैन गिव मी एज। And that was the newspaper which you news- taking help of newspaper. Yes, those extra bits. Extra bits, yeah. So this was the preparation, and then there was my strategy. I had created A4 size pages like for women, then agriculture, then Indian folk, Chhattisgarhi Good, folk. good. Like, ये साल भर हमने प्रिपेयर करके रखा, इसको हम जी, ऐसा कह सकते हैं। जी, जी। ओके, यूपीएससी में ऐसे प्रिपेयर किया हमने, देन सीजीपीएससी में ऐसे प्रिपेयर किया। दो सीजीपीएससी हैज गिवन सर्टेन पॉइंट्स लाइक फैक्ट्स जी। चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दे रहे होंगे, जी, एंड इस तरह की चीजें उन्होंने पहले ही बता रखी है। सो इसको लेकर पहले से दिमाग में था कि ये प्रॉब्लम एरियाज हैं एंड नाउ देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस। ऐसा कुछ हमने नोट्स प्रिपेयर कर रखा है। This is the best part of CGPSC. Syllabus is very nicely made, Nicely and made, yeah. things are very predictable. Yeah. Like there's a word in syllabus and you have to prepare a one Around page that. thing and that's it. So that's the best part. If you're focusing on every word of syllabus, it's very easy for you then. So I know it's very easy to say this, but It's okay, yeah, it's really, I mean, it's very simple, straightforward. exactly, which is not the case in UPSC. Yeah, obviously. There's a one-line syllabus on international events, on national events, and that's it. That's And you don't know Don't know So, what what is coming to you. Yeah. What about CG related topics? कैसे उसको आपने कलेक्ट किया या प्रिपेयर किया? क्या गेसिंग रही? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किया? क्या स्ट्रैटेजी रही सीजी जीएस के ऐसे? So previous year questions analyze किया and so कुछ भी जो top obviously previous year से ही पता चला कि schemes related questions आने ऐसे topics आने लगे हैं, so you should know the signature schemes of the state going on and what are the schemes, what are the topics going on in the state, so you have to prepare. Yeah. You cannot go behind. You have to prepare. You have to study those schemes and you have to study what's going on in your state. So that's give you the content for your essay. And one difficulty in CGPSC essay is this: in UPSC you can write everything which is coming to your mind. Here it is 750 words. Fit you have to fit in there, and the page is limited. yes, so obviously. you have to strategize. एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी क्या रही? लाइक टॉपिक देखा एंड देन व्हाट वाज योर प्लान? So first part is topic decide करना and then उस पे brushing करना. So last page थोड़ा सा question Rough paper work. पे rough work, writing the bullets, causes, pros, cons, merits, demerits, so that I can create one paragraph on this word, one paragraph on this word. So
8-9 paragraphs and then you're already done with that limit. So एक प्लानिंग तो चाहिए बेसिकली। बिल्कुल सर, जो ऐसे में नए स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं भूमिका ने क्या प्लान किया। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्लासरूम में किसी दिन हम भूमिका को बुला लेंगे और आप सभी सुन लेंगे, बट फिलहाल जो कंक्लूजन है वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत नया काम है, बट काम करना है एग्जाम हॉल में आपको, बिकॉज प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो साल भर आपने प्लान किया, फिर एग्जाम हॉल जाकर फिर प्लान करना, बिकॉज यू गेट 45 मिनट्स फॉर सिंगल एसे, Exactly. है ना। जी, sir. 45 मिनट्स में आप 5 to 10 मिनट्स प्लान करते हैं, देन 30 मिनट्स बचे हुए 35 मिनट्स में आप लिखते हैं। वो लिखने में ही फिर फैक्ट्स, कंक्लूजन, एवरीथिंग इट काउंट्स। स्टूडेंट्स के अक्सर एक क्वेश्चन लाइक पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है, व्हाट इज योर प्लान, क्या किया आपने उसमें? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ऐसे पैराग्राफ्स में मुझे मेरी हैंड राइटिंग में अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। देयर आर स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स बुलेट्स भी यूज करते हैं, तो एट फ्यू इन अ पैराग्राफ आई हैव यूज्ड बुलेट्स like disadvantages of deforestation kind of thing. So there I had put bullets, but not much because in essay there's बहुत कम space है, कम words है, and you have things to write. Right, So yeah. you have to judiciously use your space. And essay looks good with paragraph. मुझे ऐसा लगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने on the contrary answer writing मैंने bullets में की थी। Okay. जी sir. Have you used any table, charts, diagram kind of thing in essay writing? In essay writing, yes, I had used this bar graph thing at the side. Yes, Okay. I had used it. Okay, fine. सो सभी स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि ऐसे राइटिंग एक बड़ा फोटे है, एक बड़ा आपको एज देता है बेसिकली, और एज देने के साथ साथ आप देख पाते हैं कि मार्क्स उसमें बहुत सारे छुपे हुए हैं, तो मार्क्स के साथ हम इसमें कंटिन्यू कर पाते हैं जब आप इस तरह की चीजें प्लान आउट करते हैं। ओके, सो दोस्तों हम ऐसे राइटिंग पर बातचीत से आगे बढ़ते हैं। जीएस में पेपर 3 से पेपर 7 तक क्या प्लानिंग रही आपकी? बिकॉज यूपीएससी के सब्जेक्ट्स अलग हैं, यहाँ पर आने के बाद एक इंडियन पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हम बहुत एनालिसिस में चलते हैं, यहाँ टू द पॉइंट फैक्ट्स, क्या दोनों में डिफरेंस करके हमने मैनेज किया? सर आपके आंसर प्रेजेंट करने का ही डिफरेंस है, बट लक्ष्मीकांत वहां भी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत यहाँ भी पढ़नी है, दैट इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी। तो यस, दैट वाज द बुक सेम है, बट थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज है। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे पूछा है फंक्शंस, तो यू हैव टू राइट इन बुलेट्स कि दीस आर द फंक्शंस। ठीक है। सो इसके अलावा भी लाइक जीएस में भी सीजी पार्ट है, छत्तीसगढ़ जी का इतिहास, हिस्ट्री पार्ट ऑफ सीजी, उसमें क्या स्पेशल किया आपने? क्योंकि अक्सर जो यूपीएससी से आते हैं उनको वो पार्ट बहुत टफ लगता है, हिस्ट्री वाला पार्ट, तो इसके लिए क्या स्पेशल आपने किया? एग्जैक्टली वो टफ लगता है, स्पेशली टफ तब भी लगता था जब मटेरियल और हिंदी में आया करता था, जिसकी मुझे आपकी काफी हेल्प मिली विद द पायनियर, तो सर वो मटेरियल इंग्लिश में मिल गया। और फिर सर एक ये स्ट्रैटेजी थी कि जितनी स्पेस दी होती थी उसका ऑलमोस्ट 1/3 तो मैं छत्तीसगढ़ मैप के लिए रखती थी। ग्रेट, ओके। जो भी क्वेश्चन आया है वो उसमें छत्तीसगढ़ का मैप जरूर रहेगा, स्पेशली हिस्ट्री वाले पार्ट में, मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिसमें यू कैन शो कि ये डायनेस्टी किस एरिया की है, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल छत्तीसगढ़। सो या वो एक रिप्रेजेंट करा, और फिर आंसर कंटेंट तो आपको लिखना ही है। ठीक है, ठीक है। इन सभी में लाइक सिंस यू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, आपने मास्टर्स भी किया, यूपीएससी में भी आपने पढ़ा, सो क्या आपने पहले से भी कुछ फैक्ट्स कलेक्ट कर रखे थे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फैक्ट्स? लाइक आर्टिकल्स तो एक रेगुलर फैक्ट्स है, कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर से भी निकाल रखा था सब्जेक्ट वाइज की ये काम आएंगे मुझे? जी सर, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आती थी, लाइक जिससे टाइगर सेंसस आया, या फिर आईएफएसआर रिपोर्ट आई, या फिर क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट आई। तो जस्ट गोइंग थ्रू दैट एंड थोड़ा सा उसमें कुछ डेटा मिल जाए, और जब ब्रेक लिया, ये पढ़ लिया, तो इन चीजों के थोड़े बहुत फैक्ट्स हेल्प करते हैं। इन सभी पेपर्स में लाइक कौन सा पेपर ज्यादा चैलेंजिंग आपको लगा? लाइक सोशियो, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स अटैच्ड हैं, इनमें से क्या चैलेंज आपको क्रिएट हो रहा था? मे बी द स्पोर्ट्स वाला पार्ट। स्पोर्ट्स वाला, या बिकॉज एकदम से आप कितना रटोगे, नॉट एग्जैक्टली इमीडिएट शिफ्ट था, एंड
बिकॉज यू डोंट नो क्या क्वेश्चन आ ठीक जाएगा. बात है. सो दैट स्पोर्ट्स वाला पार्ट में भी. एंड ओवरऑल पेपर 7 कैसे आपने हैंडल किया, बिकॉज करंट अफेयर्स काफी कुछ है उसमें, दैट एक्ट वाला पार्ट एंड जी. एजुकेशन वाला पार्ट, आईआर एंड स्पोर्ट्स. आई गेस दैट वाज द बेस्ट पार्ट बिकॉज उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज वेरी स्टैटिक. तो उसमें नोट्स हैं, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक देयर इज दिस ब्रिक्स, जी. यू हैव टू राइट ब्रिक्स ऑन गूगल और देन उसका एम, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका फंक्शन, वो एक जगह पेज का पर. नोट बनाना है, दैट इज इट. सो वो वाला पार्ट वाज वेरी नाइस. देन ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पार्ट भी सर, वो दैट इज टोटली करंट अफेयर्स एंड I love current affairs because that is very dynamic, that is very interesting. Interesting, in fact. That breaks your monotonicity. So paper 7 was really interesting for me. ओके. इंटरव्यू कैसा रहा ओवरऑल, किस तरह के क्वेश्चंस थे एंड हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहा, आपकी हॉबी क्या थी? सर हॉबी उसमें मेरी बेकिंग थी and playing squash. So for a change, there was no question from hobby. There was no question. Okay. I prepared really well. मुझे लग रहा था कि प्लीज मुझे इससे Different क्वेश्चन है. आ जाए, Definitely. सबसे आता है. But then there was no question on hobby. ओके. Interview was nice. Interview was very normal, not very hype, not very tension giving. It was good. Yes, Chhattisgarh issues के questions थे. There were questions related to tribals, and they were very analytical kind of questions. कि what is that issue? Why insurgency is still pursuing? And difference between insurgency and Maoism kind of questions. Then there were questions on women empowerment, state women empowerment के लिए क्या कर रही है, women education के लिए क्या कर रही है. There were questions on irrigation. Then there's this Indira Gandhi Agriculture University open हो रही है, तो इस टाइप के आंसर्स दिए कि इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय खुलने वाला है जो कि इरिगेशन और वुमेन एजुकेशन को एम्पावर कर सकता है. ओके. तो वुमेन, ट्राइबल, ये सारे इश्यूज आपने एंजॉय किया होगा, बिकॉज यूपीएससी पढ़ के आने के बाद उस लेवल का इंटरव्यू मिल जाए. एग्जैक्टली. इंटरव्यू वाज रियली नाइस. इट वाज नॉट, इट वाज वेरी एनालिटिकल. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्स पूछ लिया, अच्छा महानदी की लंबाई बता दो, लाइक काइंड ऑफ. जी. तो आई वाज गोइंग ऑन विद दिस वेरी इंटरव्यू काइंड ऑफ आंसर. चंपारण और अपना वीर सरोवर, ये अपना स्टेडियम. दे वर लाइक नहीं, पहले तो मॉल वॉल घुमाओ, कहाँ पहले यहाँ सब घुमाने ले जाओगे, मंदिर वगैरह क्या. ऐसे उन्होंने थोड़ा नोट लाइट किया था. इट वाज वेरी ओपिनियटेड काइंड ऑफ इंटरव्यू. ओके, गुड. एक दो फैक्ट्स पूछे थे. ठीक है. सीजीपीएससी में जब हम ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करते हैं, एक टाइमलाइन स्लॉट हम डिजाइन डेवलप करते हैं. कोविड के बाद आपने प्रिपेयर किया एंड देन फाइनली यहाँ तक की जर्नी, डीसी तक की जर्नी. इस बीच नोट्स मेकिंग, डेली का कोई शेड्यूल था प्लान वे में? यस सर, शेड्यूल था. जनरली सुबह उठ के जब वो बहुत फ्रेश माइंड होता है एंड यू आर इन दैट फुल एनर्जी, तो जनरली इट स्टार्टेड विद लैंग्वेज. फिर जब लैंग्वेज से थोड़ा सा बोर हो जाते थे तब लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. एंड देन एक पार्ट रहता था कि इसको फर्स्ट हाफ में करना है, इसको सेकेंड हाफ में करना है. ओके. लाइक फर्स्ट हाफ सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रख ले कि ये 5 टॉपिक्स खत्म करके विल गो फॉर लंच. फिर थोड़ा लाइट करने क्वेश्चंस बनाएंगे प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व कर लेने के लिए. देन सेकेंड हाफ कुछ अगर टॉपिक डिसाइडेड है या आंसर राइटिंग हो गई उसके साथ में. So like this I used to. ओके. पूरे दिन में एंड कोई रिजर्व टाइम था हमारे पास, लाइक जब हम आंसर राइटिंग करते हो या used to write something? Generally while going back from library to home, जब घर जाके लाइब्रेरी में पढ़ के इतना शांति से, जब घर पे एकदम पढ़ने का you cannot take up your book and then study again. I used to write जो आज पढ़ा और उससे related question bank से देख के used to write कि इसमें क्या लिख सकते हैं. So let's write. ओके. ऐसा भी था कि हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, स्मॉल पॉइंट्स जट डाउन कर रखा था कहीं पर? Yes sir, almost notes को I used to try कि शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बना रखूं so that लास्ट डेज में वो पढ़ते रहे, एकदम रेडी रहे, एक हाथ में पेज रहे तो I can
जस्ट वॉक एंड रीड और एक टॉपिक खत्म हो जाए। Okay. तो बहुत टिडबिट्स बना रखे थे। ऐसे सभी चीजों के लिए हमने कर रखा था। जी सर। ओके, आंसर राइटिंग में क्या हमने पोयम और कोई स्लोगन या इस तरह से छत्तीसगढ़ी में लाइक खाना एंड ऑल ऐसे कुछ यूज किया हमने? जी, ये आंसर राइटिंग में तो एक दो जगह ही, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है बिकॉज हाँ, to the स्पेस point, लिमिटेड yeah. होती है, टू द पॉइंट आंसर करना रहता है। ऐसे में ये जरूर यूज किया है, Okay. छत्तीसगढ़ी स्लोगन्स और कोट्स ये यूज किए फाइन हैं। फाइन। सपोज इस लाइफ में करियर ये वाला नहीं होता तो आपने क्या प्लान कर रखा था? लाइक नॉट इन यूपीएससी, नॉट इन सीजीपीएससी, तब आपने क्या सोचा कि कोई साइड प्लान था या जस्ट फोकस्ड ऑन सिविल सर्विसेज? That was my biggest fear when I used to think about this. कि करना क्या है? करना क्या है? And I just didn't want to think about plan B because हाँ। plan B के बारे में सोचना बहुत ज्यादा डेंजरस लगता था कि plan B की जरूरत ही ना जरूरत ही ना है। है। तो छोड़ो, अभी उसमें दिमाग ना चले, इससे अच्छा लेट्स स्टार्ट विद अ बुक, पढ़ लेते हैं। फैमिली में कोई एनवायरनमेंट पहले से था, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई रहा हो? वेरी क्लोज Okay. उसमें तो नहीं। यस, मेटर्नल साइड रहा है, Okay. मदर साइड Okay. नाना जी वगैरह सिविल सर्विसेज में रहे, तो वहां से कुछ थोड़ा बहुत? ऑलवेज ही वाज वेरी इंस्पायरिंग, लाइक तुम बनोगी, पढ़ते रहो। तो वो ऐसा बोलते थे। तो फिर स्कूल कॉलेज में कभी कोई टीचर टकराए कि जिन्होंने बोला हो कि हाँ करो जाना चाहिए? स्कूल में एवरी टीचर वाज वेरी कॉन्फिडेंट। कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा अगर टीचर मेरे लिए इतनी कॉन्फिडेंट है तो आई शुड एंड आई कैन डू दैट। ग्रेट। और स्कूल टीचर्स स्टिल आज मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ एंड दे आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग, फ्यू ऑफ माय टीचर्स। स्कूल के न्यूज़लेटर्स होते थे या स्कूल में कुछ न्यूज़लेटर बनना है या कहीं भी कुछ स्पीच लिखनी है तो दे यूज्ड टू कॉल मी कि Okay. तो वहां से लिखने में बड़ा मजा आता था कि Okay. अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, अच्छा लिखना है। ठीक है। इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ ओवरऑल 23 इयर्स हो चुके हैं। बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं जिनको ठीक करना है, फिर भी कोई ऐसा ड्रीम लेकर चलें कि छत्तीसगढ़ में ये वाला काम तो मुझे ठीक करना है, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट जॉब, कुछ ऐसा सोच रखा है दिमाग में? So yes, women health पे काफी काम करना है। So if they are healthy, state is healthy. Yeah. So this iron deficiency thing is still persisting in our state. Okay. Women health पे I want to work. Great. That's nice. So contribution यही था जब we used to discuss preparation CGPSC की चालू की, and since हम same background से हैं, he was also from NIT, तो we used to discuss कि अभी ये पढ़ रहे हैं, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है, अभी ये चल रहा है, तो used to decide कि अच्छा इसमें ये कर लिया है क्या, and sometimes he's like नहीं मैंने तो ये नहीं किया है, and I'm like नहीं मैंने तो इसमें ये नहीं किया है। तो it was very cooperative at the same time competitive environment. So this was very helpful for me. And बहुत सारे और भी कपल्स आते हैं लाइक आफ्टर मैरिड दे वांट टू प्रिपेयर इट, सो मैं उनके लिए वो क्वेश्चन लाना चाहता हूँ। बीइंग अ फीमेल एक रिस्पांसिबिलिटी भी होती है आफ्टर मैरिड, आई मीन यू आर सपोज्ड टू लुक आफ्टर पेरेंट्स एंड ऑल, सो वो उस तरह के चैलेंज सोसाइटी में मिलते हैं, आपके लिए क्या रहा? on this note, I am really blessed. Okay. मैंने तैयारी वहां पे की, वहां वाले पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, हमेशा सपोर्टिव रहे। मैंने एग्जाम शादी के बाद दिया, मेंस और इंटरव्यू प्री शादी के पहले दिया था जी। तो यहाँ पे शादी के बाद दे वर वेरी सपोर्टिव, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तो कुछ हर्डल्स फेस नहीं करने पड़े। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव बहुत बढ़िया सच पेरेंट्स बोथ द साइड्स। होता है दोस्तों, जितने भी लोग आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी की फैमिली में कोई ना कोई चैलेंज तो होता है। इस जर्नी में कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन डेफिनेटली आपको पॉजिटिव साइड में देखना होता है। कभी कोई ऐसा भूमिका, कोई एक टाइम पीरियड आया जब लगा कि अब नहीं होगा, ऐसा कभी महसूस भी हुआ? There are days जब लगता है, पर ये नहीं लगा कि अब नहीं होगा। ये जरूर लगता है कि आज ये नहीं हो पाया, आज ये नहीं हो पाया, मे बी आई एम लैगिंग बिहाइंड। कंटिन्यूअसली लगे रहो तो ये वाला फैक्टर नहीं आता है कि अब नहीं होगा। इफ नॉट दिस देन व्हाट, हम वो उठाते ही फिर एंड इफ नॉट मी देन हु, आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। इट वाज गोइंग ऑन, मे बी समटाइम्स स्पीड वाज escalated, sometimes slowed down, but then
I have to take the toll to balance it. ओके 2012 में आप जब पाथ में आए थे उस वक्त क्या प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया था? तो मुझे याद है आपसे ही मिली थी और पूरा डिस्कस किया था। जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इतना ध्यान नहीं होता है, तब सिलेबस भी इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ याद नहीं रहता है, एंड जस्ट अब आया एग्जैक्टली 12 में पैटर्न चेंज हुआ था। तो काफी हेल्पफुल था जब अपना डिस्कशन हुआ और लगा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई केम विद माय मदर एंड आई वेंट बैक कि हो जाएगा, ये तो करना पड़ेगा, हो जाएगा, मतलब ठीक है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा, हो जाएगा, लेट्स डू दिस। फिर इंटरेस्ट आ गया, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ते रहे। एट द सेम टाइम कॉलेज थिंग्स भी होती हैं, यू इंडल्ज इन योर कॉलेज थिंग्स। दोबारा जब यहाँ एंट्री लिए तो मेन सपोर्ट सिस्टम किस चीज का आपने लिया? लाइक व्हाट वाज वेरी हेल्पफुल पाथ में जब आए तो? सर मैंने तो सोर्सेज काफी यूज किए पाथ के, जो भी अपने स्टडी नोट्स है, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, लैंग्वेज हो गया। इनफैक्ट हर पेपर में मैंने सोर्स पाथ यूज किया है, द डिटेल्स, बिकॉज हम नोट्स तो नोट्स से ही बना रहे हैं या बुक से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के नोट्स मैंने यूज किए। एंड देन मैंने मॉक्स यहाँ पे दिए, आई इंटरैक्टेड विद यू, आई इंटरैक्टेड विद दिस बैक एंड, होल कल्चर इज सो नाइस। कभी कभी ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो पाथ देख आते हैं, थोड़ा लाइट होके आते हैं। तो it was very nice. So I was very excited to meet you after my result. Thank you. So guys, definitely हम भूमिका को क्लास में लेकर आएंगे। So और भी क्वेश्चंस आपके होंगे तब आप लाइव पूछ लीजिएगा। फिलहाल आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मोटे मोटे तौर पर पेपर वाइज और ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी किसी स्टूडेंट की, स्पेशली इन टॉप रैंक्स, आप गेस तो नहीं कर पाते हैं बट फिर भी आपको संभव पता लग जाता है कि हाँ हम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जब दोनों मेरे पास शशांक और भूमिका आए तब भी हमने काफी बातचीत की थी इस बारे में कि करना क्या है, आगे प्लानिंग्स कैसी होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, बीइंग अ टीचर आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप शेयर करते हैं। अल्टीमेटली कहीं से कोई मैजिक नहीं होना है, इट्स अ प्योर शुद्ध मेहनत। वो मेहनत दोनों साइड की है डेफिनेटली। आप इस फील्ड में आते हैं, तैयारी करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल थैंक्स भूमिका, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जर्नी में आप और आगे बढ़े, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोशिश तो होनी चाहिए। वैसे खैर आईएएस आपने दिया, तैयारी किया, नहीं हुआ देन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ भी बहुत प्यारा स्टेट है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे जरूर लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ बहुत आगे जाएगा। ये मेरी सोच और मेरी भावना भी है। बिल्कुल सर। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स भूमिका। थैंक यू।